Hello everyone. This is our part 2 of chapter 5th of advanced surveying equipment. In this part 2 lecture, we will going to discuss about the total station. In previous part, we had discussed the EDM, then the electronic theodolite and one micro optic theodolite. Okay. Uh, in this part 2, only the one advanced surveying equipment is remaining, that is total station. So let us start with the introduction of total station. The total station is an electronic instrument used in modern surveying and building construction. This is an electronic instrument and this is a very modern equipment used for the building construction or any road work also. Why it is called as a total station? Because any survey operation, that is contouring, leveling, traversing, triangulation, all survey operation is done by only one instrument, that is called as a total station. Okay. The total station is a combine or the combination of theodolite and the electronic distance meter EDM to read the vertical and the horizontal angles and slope distances from the instrument to the particular point. A microprocessor in the instrument takes of recording, reading and care necessary for computation. Okay. Only horizontals, vertical angles, slope distances, all points हम लोग calculate करते हैं with the help of total station. But the working hours for जो बैटरी लाइफ है वो only 5 hours है. ओके. सो जो बैटरी लाइफ ज़्यादा रखने के लिए हम लोग को उसका वर्किंग कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. फर्स्ट, बिफोर द वर्किंग पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द टोटल स्टेशन. ओके. This part is called as a carrying. Okay, and this is the carrying handle. Then here this point is called as a optical sight or the finder. Okay, this point is a optical finder. आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिया है तो वो भी आप लोग रिफर कर सकते हो. Second, this part is called as a eyepiece. Okay. Then next, this ring is called as a focusing knob. Here is a battery. Then this is a center. Okay. This is a battery pad of BC65 and this one is a battery mounted button. Okay. Then this is the vertical tangent screw. Okay, this is called as a vertical tangent screw and here is a vertical clamping screw. Then here is a horizontal tangent screw. Okay, horizontal tangent screw. Then this is the foot screws, all of you know the foot screws. Then this is a base locking level. Okay, जो हम लोग ट्राइपॉड को फिक्स करते हैं. दिस इज अ बेस प्लेट, दिस इज अ फुट स्क्रूज, this is a key. Okay, these are these key and this is a face display and keyboard. Okay, this is a face display and keyboard. Then here is a plate level. Okay, then here is a ये अंदर की साइड पे है. ओके, इसे बोलते हैं डियोपोटर रिंग, सॉरी. देन दिस ये साइड पे रहेगा वो टेलीस्कोप है, ये आईपीस है तो यहाँ पे अपोजिट साइड पे रहेगा ऑब्जेक्ट ग्लास. ओके, तो ये सब कंपोनेंट पार्ट्स विद डायग्राम आपको याद रखने हैं. ओके, डायग्राम और कंपोनेंट पार्ट्स आप लोग प्रैक्टिस करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो. ओके, अभी जो वर्किंग विद द टोटल स्टेशन है तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ये डिस्प्ले बॉक्स है. ओके, एलईडी डिस्प्ले ब्लॉक. यहाँ पे क्या है, फंक्शंस की है. ओके, तो ये फंक्शन, हर एक की का फंक्शन क्या है मैं आपको सिर्फ बताती हूँ. अभी यहाँ पे
F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे फंक्शंस की है और यहाँ पे न्यूमेरिक की है। तो F1 to F4 that is name is called as a soft keys. Okay, the function corresponding to information display. Okay, information display करते हैं जैसे हम लोग पुट करेंगे। फिर यहाँ पे न्यूमेरिक की है 0 to 9. So number keys, if 1 we put 1, so input number when numeric input. Second, input character when alphabetic input. Okay, नंबर चाहिए तो 1, अल्फ़ाबेटिक चाहिए तो 2, सिलेक्ट आइटम ऑफ द मेन्यू तो 3 करना है। ओके, ऐसे 9 तक है बट यहाँ पे उनकी बुक में आपके 3 तक का दिया है। सो जितना जैसे हम लोग यूज़ करते हैं आगे आगे हम लोग को वैसे पता चलता है। अगर हम लोग 5, 6, 7 तो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे उसके फंक्शंस। देन पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। ओके, सो डेसिमल पॉइंट का यूज़ क्या है, इनपुट डेसिमल जहाँ पे लगेगा वहाँ पे डेसिमल साइन यूज़ होगा। देन प्लस माइनस साइन है यहाँ पे, देन प्लस माइनस साइन का यूज़ क्या रहेगा, प्लस माइनस इनपुट करने के लिए स्टार की। ओके, स्टार की है, स्टार की का फंक्शन का यूज़ क्या है, एंटर इनटू सेटलिंग द मोड डायरेक्टली। ओके, देन पावर ऑन ऑफ करने के लिए एंटर। ओके, एंटर भी यहाँ पे है, ये साइड पे कहाँ पे तो कन्फर्म एंड डायलॉग एंड सेव द सेटिंग फाइल के लिए हम लोग एंटर दबाते हैं। देन नेक्स्ट है एस्केप, दैट इज ESC। ओके, ये तो हम लोग कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। सो एस्केप टू द प्रीवियस मेन्यू और द मोड और एंड डायलॉग नॉट सेव, उसके लिए हम लोग एस्केप दबाते हैं। देन एंज, दैट इज ANG, दैट इज एन एंगल मेजरिंग। सो ANG +1 दबाने के बाद एंटर टू एंगल मेजरमेंट मोड, और सेकेंड दबाने के बाद अप एरो मूव द कर्सर अपवर्ड और सिलेक्ट द अपर आइटम्स। ओके, देन नेक्स्ट है डिस्ट, दैट इज डिस्टेंस मेजरमेंट। डिक्स +1 दैट इज एंटर इनटू डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट मोड अंडर बेसिक मेजरमेंट मोड एंड 2 दबाने के बाद डाउन एरो। देन कॉर्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट मेजरमेंट, एंगल डिस्टेंस कोऑर्डिनेट। ओके, सो अभी हम लोग कॉर्ड शॉर्टकट के कोऑर्डिनेट मेजरमेंट, इफ वी प्रेस 1 एंटर इनटू कोऑर्डिनेट एंड एंगल मेजरमेंट मोड अंडर बेसिक मेजरमेंट मोड एंड द सेकेंड वन इज अ सेकेंड अगर दबाते तो लेफ्ट एरो। देन मेन्यू, दैट इज एंटर इनटू मेन्यू मोड अंडर बेसिक मेजरमेंट मोड और राइट एरो। अभी ये तो हम लोग ने सिर्फ बताया, जब भी हम लोग इसके एक्चुअल फंक्शंस देखेंगे, मतलब जब भी हम लोग ग्राउंड पे लेके जाते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रैक्टिकल यूज़, तभी हम लोग को ये ज़्यादा समझ में आएगा जो फंक्शंस अभी हम लोग ने बताए। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक यूट्यूब के वीडियो सेंड करती हूँ, ताकि आपको और जो हम लोग ने ये थियोरी में देखा है तो प्रैक्टिकल में उन लोग ने कैसे बताया वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। अभी हम लोग जैसे सेटिंग करते हैं, हम लोग ने थेडोलाइट की भी सेटिंग की है। जब भी हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप में कौन से पॉइंट होते हैं, फर्स्ट तो ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करना, देन सेंटरिंग हुआ उसका, देन लेवलिंग हुआ एंड फोकसिंग। ये 3 पॉइंट हम लोग को टोटल स्टेशन में भी करना है। तो सेटिंग भी कैसे करना है, जैसे हम लोग थेडोलाइट का करते हैं उसी टाइप का है, बस माइनर चेंजेस है। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेप्स देखते हैं कि कैसे सेटिंग इंस्ट्रूमेंट का करना है। एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल सेंड यू वन यूट्यूब वीडियो। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं सेटअप द ट्राइपॉड। ओके, फॉर सेटअप द ट्राइपॉड एक्सटेंड द एक्सटेंशन लेग टू suitable length and tighten the screw on the mid section. Then make sure the legs are spaced at an equal interval and the head is approximately level, so that set the tripod head in position over the surveying point। जो हम लोग ने सिलेक्ट किया है सर्वे पॉइंट पे, ओके, वहाँ पे हम लोग को सेट करना है, ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखना है। देन मेक श्योर दैट ट्राइपॉड शू आर फर्मली फिक्स्ड
इन द ग्राउंड। ओके, जो ट्राइपॉड के लेग्स है वो क्या करना है, फर्मली ग्राउंड में इंसर्ट हुए कि नहीं वो भी देखना है। देन स्टेप ऑन द ट्राइपॉड टू मेक श्योर दैट इफ it is well stationed on the ground. Then third point, mount the instrument on the tripod head, supporting it with one hand. Tighten the centering screw on the bottom of the unit to make sure it is secure on the tripod. ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये क्या होता है, स्क्रू होता है नीचे जो ट्राइपॉड स्टैंड को ये हम लोग यूनिट जो है ये टोटल स्टेशन फिक्स करते। तो टोटल स्टेशन हैवी होता है तो डायरेक्टली इसे ट्राइपॉड पे नहीं रखना है, वन हैंड से सपोर्ट करना है एंड नीचे हम लोग को उसको टाइटन करना है। तो ये हुआ हम लोग का जस्ट ट्राइपॉड पे टोटल स्टेशन को फिक्स करना। देन नेक्स्ट है सेंटरिंग एंड लेवलिंग। ओके, तो सेंटरिंग एंड लेवलिंग में फर्स्ट पॉइंट है the position the tripod leg so that the plummet is aimed to the ground mark. okay okay, अभी plummet aim is to the ground mark मतलब यहाँ पे एक आई पीस होता है जिसमें प्रिज्म अटैच होता है। तो प्रिज्म से हम लोग को जो हम लोग ने स्टेशन पॉइंट मार्क किया है वो स्टेशन पॉइंट एग्जैक्टली बिकॉज वो प्रिज्म में से हम लोग को ग्राउंड लेवल दिखता है। ओके, सो ग्राउंड लेवल पे हम लोग ने कहाँ पे स्टेशन पॉइंट मार्क किया है वो हम लोग को वहाँ पे वो प्रिज्म में से दिखेगा। सो हम लोग एग्जैक्टली सेंटरिंग कर सकते हैं। ओके, सो वही पॉइंट बोला है, पोजीशन द ट्राइपॉड लेग सो दैट द प्लम्पेट इज एम टू द ग्राउंड मार्क पॉइंट एंड टर्न ऑन द लेजर प्लम्पेट। सेकेंड पॉइंट, टर्न द फुट स्क्रूज ऑफ द ट्राई ब्रांच। ओके, अभी ये फुट स्क्रूज है और यहाँ पे एक लेवल ट्यूब होता है, ये देखो यहाँ पे एक लेवल ट्यूब रहेगा। Okay, so turn the 3 foot screws of the tri-batch till the center of reticulate exactly coincide with the serving point at any position. Then move the tripod legs to the center, the circular level. The instrument is now roughly leveled up. Then center the bubble in the circular level. Okay, फर्स्ट हम लोग को ट्राइपॉड लेग्स को फिक्स करके सेंटर पे लाना होता है बबल ट्यूब को एंड देन वो प्रिज्म में से। ओके, देन अभी जो स्क्रू का अरेंजमेंट है कि कैसे करना है, लूज द हॉरिजॉन्टल मोशन क्लैम्प एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट टिल द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन शेप विद द स्क्रू। ओके, अभी जैसे ये ए स्क्रू है, ये बी स्क्रू और वो थर्ड रहेगा सी स्क्रू। तो एट द सेम टाइम आप लोग को बबल सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में आपको एक तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे उसका अरेंजमेंट होगा उसी हिसाब से। बट जब भी दोनों फुट स्क्रूज एट द सेम टाइम आपको मूव करना है, दोनों स्क्रू एक तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना है या क्लॉकवाइज करना है वो आपके ऊपर है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं करना है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, सेंटर जो ट्यूब है वो जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में लाना है। ओके, देन रिपीट द अबव स्टेप्स टिल बबल रिमेन्स इन द सेंटर टू द प्लेट लेवल व्हाइल द इंस्ट्रूमेंट इज रोटेट टू एनी पोजीशन। ओके, सो ये हम लोग का क्या हुआ, सेंटरिंग एंड लेवलिंग पोजीशन हुआ। ओके, वीडियो देखोगे उसका यूट्यूब का तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ टोटल स्टेशन। ओके, फर्स्ट यूज है एंगल मेजरमेंट। टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स द इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट ऑफ डिवाइस इज यूज्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2 to 6 सेकेंड ओनली एक्यूरेसी है। ओके, 2 to 6 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट है। फॉर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ऑफ एंगल एनी डायरेक्शन कैन बी टेकन एज रेफरेंस। इन वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ एंगल अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज अ रेफरेंस। फॉर वर्टिकल एंगल के लिए अपवर्ड डायरेक्शन रेफरेंस के लिए लेना है। ओके, देन डिस्टेंस मेजरमेंट इन टोटल स्टेशन। टू मेजर द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस ईडीएम। ओके, अभी ही हम लोग ने जस्ट देखा ये इंटीग्रेटेड किया हुआ है विथ थेडोलाइट एंड ईडीएम। ओके, सो द मेजर डिस्टेंस के लिए ईडीएम का यूज़ होता है। सो द
To measure the distance, electronic distance measuring EDM instrument of the total station is used with an accuracy of 510 mm per kilometer. The range of EDM varies from 2.8 to 4.2 किलोमीटर की ये डिस्टेंस, ये एंगल मेजरमेंट है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट मेजरमेंट। कोऑर्डिनेट मेजरमेंट फर्स्ट पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एन अननोन पॉइंट relative to the known coordinate can be determined using total station as long as a direct line of sight can be established between the टू पॉइंट्स। ओके, जो हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स देखे हैं, नॉर्थ कोऑर्डिनेट, साउथ कोऑर्डिनेट, ओके, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एंगल एंड डिस्टेंसेस आर मेजर from the total station and coordinates XYZ or resting northing elevation of survey points to the total station positions are calculated using trigonometry and triangulation. Okay, then the last use है data processing. Some models include the internal electronic data storage to record a distance, horizontal angle and vertical angle measured, while the other models are equipped to write the measurement to an external डाटा कलेक्टर सच एज हैंड हेडेड कंप्यूटर। ओके, डायरेक्टली भी रिकॉर्ड, अभी वो तो डिपेंड है कि मॉडल कैसा हम लोग टोटल स्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डाटा स्टोर होगा या कुछ डाटा जो है वो मैन्युअली कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा। व्हेन डाटा इज डाउनलोड फ्रॉम द टोटल स्टेशन ऑन टू कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू कंप्यूटर रिजल्ट एंड अ मैप ऑफ सर्वे एरिया। ओके, ये उसके यूजेस है। सभी प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस देखते हैं कि टोटल स्टेशंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देन मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन इन ट्रायंगुलेशन सर्वे। ओके, देन it can be carried out using speedily and accurately by making use of total station. Second point है, instead of triangulation, the length of all side of all the triangles can be measured accurately with such an instrument. Entire process is called as a trilateration. Okay. Then third point है, the measurement of distances between two control points established on the ground in aerial photogrammetry and can be measured accurately by total station. So देखो कितने सारे total station की यूज़ है practically. Then measurement of distances in difficult work site. Okay, the total station can be adopted for speedy completion of open traverse. Open traverse किस में रहते हैं, like railways, highways, transmission lines, etc. Then total station can also be used for accurate setting out work by coordinate मेथड, बिकॉज क्या है कि कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते डायरेक्टली टोटल स्टेशन से, जो तो जहाँ पे सेटिंग आउट बाय कोऑर्डिनेट मेथड है वहाँ पे हम लोग टोटल स्टेशन का यूज़ करते। तो ये तो बहुत कम यूजेस है कि प्रैक्टिकली उसके यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग पूरे लिस्ट डाउन तो नहीं कर सकते। सो आपको जितने बुक्स में दिए हैं उतने मैंने यहाँ पे लिए हैं। ओके, सो आप लोग को थियोरी के लिए ये आ सकता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, देन यूजेस के, देन फंक्शंस की बुक में बहुत सारी फंक्शंस की दिए हुए हैं, तो वो फंक्शंस की एक बार रीड करो। ओके, और वीडियो देख के तो और ज़्यादा एक्सप्लेन हो ही जाएगा आपको। ओके, और हम लोग भी एक वीडियो सेशन रखेंगे, तभी मैं आपको सब फंक्शंस की के फंक्शंस बता दूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।